صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو دیکھیے محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے میں میلاد النبی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اصل میں یہ جو اردو کا جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول، اس کی 12ویں تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے، اور تمام روایت کے اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سی روایتیں نکلتی ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے پکی جو بات ہے وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ پیدائش ہے۔ چنانچہ اس تاریخ میں خوشیاں منانا، جلوس نکالنا تو کیا شریعت میں جائز ہے؟ اس کا کیا مقام ہے؟ تو دیکھیے محترم ناظرین، میلاد النبی کا شریعت میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے تقریباً 6 صدی تک، یعنی 600 سال تک اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ خلفائے راشدین سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، یا اسی طرح محققین، مفسرین، علماء کرام، کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ بلکہ 7ویں صدی ہجری میں تقریباً 640 ہجری میں ایک ظالم بادشاہ گزرا تھا جس کا نام مظفر الدین، جو ظالم اور ستم شعار بادشاہ، فضول خرچ کرنے والا بادشاہ تھا، جس کے نتیجے میں اس نے یہ سوچا کہ ایک کوئی نہ کوئی رواج شروع کیا جائے، بلکہ اپنے علماء کرام کے، اپنے دور کے علماء کرام کو اس نے پورا مجبور اور زور اس بات کا لگایا کہ خود اپنے اختیار پہ عمل کرنے والے بنے، کسی اور کے طریقے کو اختیار کرنے والے نہ بنے۔ چنانچہ اس کے دور سے یہ میلاد النبی کا سلسلہ شروع ہوتا گیا۔ ہم یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جو شروع کے جو 600 سال، جو 6 صدی جو گزری تھی، اس میں اگر ہم تحقیق کرنے پر آ جائیں تو کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا گیا۔ تو چنانچہ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز صحابہ کرام سے، علماء کرام سے، مفسرین اکرام سے، محققین اکرام سے جو چیز ہمیں ثبوت کے طور پر نہیں ملتی ہے، اس چیز کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی اور کے مذہب کا طریقہ اختیار کرے گی وہ ان کا شمار اسی میں کر دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ تاریخ پیدائش کا خوشی کے طور پر منانا یہ تو غیروں کا کام ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی لوگ ہیں، یہ کرسمس ڈے کے نام سے اس چیز کو مناتے ہیں، 25 دسمبر کو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے طور پر یہ لوگ مانتے ہیں، اور اس میں یہ لوگ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ تو ان میں اور مسلمان میں کیا فرق رہ گیا کہ جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا، جیسا کہ برتھ ڈے منانا ہے، تو یہ بھی اسی کی طرح منایا جاتا ہے۔ جس چیز کو ہمارے نبی نے منایا تھا اسی چیز کو ہمارے نبی کے محبت کے طور پر کے منانا، یہ کہاں سے محبت ثابت ہوتی ہے؟ محبت کرنا تو وہ ہے جس سامنے والے کو بھی محبت ہو، سامنے والے کو سکون ملے، لیکن یہ کیسی محبت ہے جس محبت کے نتیجے میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آج کے اس دن
बड़े बड़े जुलूसे होते हैं, सड़कों पर घूम रखे होते हैं, बाजे उसमें बजे हुए होते हैं, और किस्म किस्म की कव्वालियां जिसमें म्यूजिक लगे हुए होते हैं, वो कव्वालियां जिसमें नाउज बिल्ला नाजेबा अल्फाज उसने इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कव्वालियां जिसमें म्यूजिक इस्तेमाल की जाती है। आप यकीन मानिए इस म्यूजिक से और इस बाजे की आवाज से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सख्त तकलीफ होती है। हम ये कहते हैं कि हम मोहब्बत करने वाले हैं, खुदा की कसम ये मोहब्बत करना नहीं है, बल्कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को तकलीफ पहुंचाना है। मोहब्बत का रिजल्ट तो ये होना चाहिए कि इंसान नमाजों की पाबंदी करें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, कुरान की तिलावत करे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को जिंदा करने वाला बन जाए। वो मोहब्बत का असल जज्बा है, असल मकसद ये है। मोहब्बत का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ साल में एक मरतबा इसी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस की तरह निकाल दिया और खाने बना लिए, खा लिए और इसी तरह किस्म किस्म की कव्वालियां चला दी और फिर आकर के बैठ गए। ये मेरे भाइयों, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत तो वो है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करे। वरना मेरे भाइयों के हमेशा हमारे नबी को हम याद करना है। हमारे नबी के नाम के बगैर तो अजान भी नहीं होती है, हमारे नबी के नाम के बगैर तो नमाज भी नहीं होती है, तो हम कहां से नबी को भूलने वाले बन जाएंगे। ये इस तरह की जो सोच है, ये गलत सोच है, ये शैतानी धोखा है। शैतान हमें धोखे में डालता है कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम ही सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए हम मिलादुन नबी को मनाते हैं, हम जश्न मनाते हैं, हम ही सबसे ज्यादा इस काम को करने वाले हैं। लिहाजा जो मिलादुन नबी नहीं करता है वो मोहब्बत करने वाला नहीं है। ये गलत तरीका है। हकीकत तो वो है, वो इंसान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सुन्नत को जिंदा करता है, वो हकीकत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। इस मोहब्बत का नतीजा रिजल्ट ये नहीं है कि हम गलत तरीके को इख्तियार करें। किसी शख्सियत से जो भी हमें मोहब्बत करनी हो उसको शरीयत के दायरे में रहकर के हम मोहब्बत करेंगे, वही मोहब्बत करना हमारे लिए काम आएगा। वरना मेरे भाइयों, किसी भी चीज की शिद्दत में जब हम चले जाएंगे वो इंसान गुनाह में मुब्तला हो जाता है। फिर इस इंसान को जब वो काम करता है वो दिमाग में ये सोचता है कि मैं शरीयत के एतबार से काम कर रहा हूं, मैं एक नेक काम कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। हालांकि हकीकत में अगर देखा जाए तो वो आदमी गुनाह कर रहा होता है। जैसा कि ये मिलादुन नबी का मामला है, हम लोग ये समझते हैं, जुलूस निकाल करके समझते हैं और हम झंडा जो लेते हैं उसमें कलिमा तय्यबा लिखे हुए होते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखे हुए होते हैं। जब तक ये मिलादुन नबी का प्रोग्राम चलता है वो हमारे हाथ में ऊपर रहता है। जब ये प्रोग्राम हो जाता है नाउज़ बिल्लाह ना मालूम, फिर वो झंडा जिसपे कलिमा तय्यबा लिखा हुआ होता है, हमारे नबी का नाम लिखा हुआ होता है, मस्जिद नबवी की तस्वीरें होती हैं, खाने काबा की तस्वीरें होती हैं, फिर वो पर्दा कहां जाकर के गिर जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उन पर्दों की फिर बेदबी, उन झंडों की फिर बेदबी होती है। तो बताए मेरे भाई, इसका कौन जवाब देगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन चीजों को हमें सुकून से समझना है, ठंडे दिमाग से हमें समझना है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। इन चीजों का सबूत मिलता भी है नहीं है। अपनी जिंदगी में उसूल ये बनाना है कि जो चीज कुरान व हदीस से मिले, सहाबा कराम से मिले, उलमा कराम से जिनका सबूत मिलता हो, उन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में हमें करना है। वरना मेरे भाइयों, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना है। भले से ही हमें ये दिखाई दे रहा हो, ये काम हमारे लिए अच्छा दिख रहा हो, फिर भी ऐसे से हमें दूर रहना है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए इन तरह की चीजों को हमें अपने आप को दूर रखना, इस तरह की चीजों से। कि दूसरी में आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इसको ईद के तौर पर मनाते हैं। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपके लिए साल में 2 ईदें बताई गई। एक ईद उल फित्र है जो रमजान के बाद आती है, एक ईद उल अज़हा है जो बकरीद के मौके पे आती है। हम और आपके लिए सिर्फ ये 2 ही ईदें हैं। और ये 2 ईदें जमाने जाहिलियत में जो उस तरह की जो खास रस्में होती थी, उस वक्त भी 2 रस्में खास तौर पर खुशियां के तौर पर मनाई जाती थी। उन रस्मों की जगह पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रस्मों को खत्म करके ये 2 ईदें हमें अता फरमाई हैं। इन 2 ईद के अलावा कोई भी हमारी ईद नहीं है। लिहाजा ईद मिलादुन नबी को
कहना, ईद के तौर पर कहना, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमेशा इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि जिस चीज को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया गया उस पर ही हमें अमल करना है, और जिस चीज को शरीयत ने नहीं बताया गया उससे हमें हम लोग जितना दूर रहेंगे इतना ही फायदा है। जिसका सबूत शरीयत में नहीं है उसको जब हम करेंगे तो मोहतरम नाज़रीन वो बिदअत कहलाएगा। और आप जानते हैं हर कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कि हर बिदअत गुमराही की तरफ ले जाने वाली है और हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए मोहतरम नाज़रीन अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको दीन की सही समझ अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए और कहने और सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।